show Analyst Call. This is your host Ozair Akhtar, and today with us we have Mr. Faisal Sheikh. Faisal is a CFD qualified full-time trader and he trades in segments like cash, future and options. Before starting his journey as a full-time trader, Faisal was part of Kotak Securities where he worked as a technical analyst. And today we'll be talking about the derivatives segment popularly known as FNO. Now, personally, I have always been quite fascinated by the FNO market. The earning potential in FNO market is quite interesting where you can take advantage of even a falling market. So today we'll try to learn a little bit more about the derivatives market with help of Faisal. Faisal, welcome to the show and how are you doing? Thank you for welcoming me, Ozair. I'm doing very good. How are you? I'm doing good too, thank you for asking. So Faisal, let's directly jump into it. सो यूर फुल टाइम ट्रेडर और अभी अगर हम देखा जाए तो काफ़ी सारे जो नए रिटेल इन्वेस्टर एंटर किए स्टॉक मार्केट में वहाँ पे काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी है स्टॉक मार्केट को लेकर के काफ़ी लोग फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट, क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट होना चाहिए और किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करें इफ अ न्यू इन्वेस्टर वांट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर? Right. So firstly, मैं अपना खुद का I'll just share my story because even I was working earlier with Kotak Securities. So क्या हुआ when I was working there, I always had this feeling कि if I pursue this full time, I can make things possible as compared to what I was doing there. As in मुझे जो reward था वो और better लग रहा था than what I was doing at that point of time. So when I was in Kotak, I did some certifications, CMT, FRM, which like really helped me understand the risk and reward front of the stock markets. So and also मेरा math skills I would say कि it's a little better than average, so that thing was always there कि, and then I had this gut feeling too. So all these things ने मुझे it gave me that motivation to quit my job and pursue this full time. But for if you say a friend, अगर मैं किसी और के बारे में बात करूँ उसको भी मैं यही बोलूँगा, you have to have that एक gut feeling is number one. Then number two is understanding of the markets. Education is the key. अगर आप if you have educated yourself in the markets like these courses or finance or NISM के courses होते हैं, अगर आपने वो सब अच्छे से किया है and you have a certain edge, say analytically, technically, derivatives, all this basics, so you can definitely go ahead and pursue it full time. Starting में आप क्या कर सकते हो? What you can do is try to do it simultaneously with your job, and then when you get a little more confident, जैसा आपका कैपिटल बढ़ते जा रहा है, your confidence starts increasing and that is when you can pursue it full time. ग्रेट. सो यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि डायरेक्टली जंप नहीं करना स्टॉक मार्केट में. ऐसा नहीं कि अपना जॉब फट से क्विट कर दिया और डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में घुस गया. नहीं, धीरे से स्टार्ट करिए साइमल्टेनियसली अपने जॉब के साथ साथ स्टॉक मार्केट में सीखिए. NISM जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, जो सेबी का गवर्नमेंट का, उससे सर्टिफिकेशन काफ़ी हेल्प करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, थ्योरेटिकली भी सीखिए कोर्सेज के थ्रू. उसके बाद फिर आप जंप करिए, फिर प्रैक्टिकली सीखिए मार्केट से. और आपने जैसे डेरिवेटिव्स का पॉइंट मेंशन किया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ज़्यादातर जो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो रहता है वो डेरिवेटिव होता है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, राइट. सो एक बार हम उसमें थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को. सो फैजल, आपके हिसाब से कैश मार्केट में ट्रेड करने में और फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO मार्केट में ट्रेड करने में क्या डिफरेंस है? दोनों के में क्या डिफरेंस है और आपको क्या बेनिफिट और क्या रिस्क होते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने के? राइट. सो उसका जो सबसे बेसिक डिफरेंस है विच इज़ डेफिनेटली लेवरेज, राइट. जब आप स्टार्ट करते हो तब आपके पास कैपिटल कम रहता है एंड दोज रिटर्न्स इट कम्स विद द रिस्क. ओके, मैं जहाँ भी रिटर्न्स बात करूँगा इट ऑल कम विद रिस्क. So you have to understand risk first and then look at the returns. So basically the number one thing is leverage, right? आपको cash में whenever you're buying anything, you have to put in all the amount, whichever amount of like the quantity and the total amount of shares you are buying. Derivatives में वही होता है, you are just paying a percentage. Say for indices, it's I don't know 20 to 30%. Stocks में थोड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि because of the risk factor. And derivatives का the second biggest advantage is basically you can short it. Cash market में retail participants cannot really short stocks, but in the derivatives market you can short a stock or an index easily. मतलब it's not that difficult. Simple, आप या तो put option खरीद सकते हो या तो आप futures short कर सकते हो.
So these are I think the basic two differences जो एकदम जो कैश और फ्यूचर्स और बेसिकली डेरिवेटिव्स मार्केट को एकदम डिफरेंशिएट करता है. ओके फैजल, सो लोगों को तो पता है कैश क्या, इक्विटी क्या, इक्विटी में ट्रेड करने के बाद लोगों को काफ़ी मालूम होता है, लेकिन लोग समझते नहीं है बेसिकली डेरिवेटिव्स होता क्या, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है. तो एक बार फ्यूचर और ऑप्शन एक्चुअली होता क्या, डेरिवेटिव होता क्या, वो एक्सप्लेन कर देंगे आपको. व्यूअर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. और शॉर्टिंग हम तो टेक्निकली थोड़ा बोल देते हैं, शॉर्टिंग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली शॉर्टिंग होता क्या वो भी एक्सप्लेन कर देंगे अगर आप, तो लोगों को थोड़ा प्रॉपर आइडिया हो पाएगा. Right. So derivatives basically, just as the word indicates, like a derivative of the cash market. So जो भी stocks होंगे उनका एक derivative होता है which is traded in the derivative market. अभी जो SEBI और NSE whatever they do is they stick to the top 150 stocks जिनको they cover in the derivatives market and plus the indices like Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty जो अभी लोगों ने recently introduce किया है. So futures तो is just आप समझिए it's just like the cash. आप all you do, the only difference is you pay just a percentage of amount as compared to you pay in the cash. But the जो सबसे different factor in the derivative market is options, which are like calls and puts. ये दो type के options होते हैं. They are a little complex to explain एक sentence में, but बहुत लोग उसको it's like an insurance describe करते हैं. अगर you just pay a short amount to say more quantity of shares खरीदने के लिए आप एक छोटा सा अमाउंट स्टार्टिंग में अपफ्रंट NSE को या अपने ब्रोकर को देते हो एंड देन उसके बदले में वो आपको एक बड़ा पोजीशन लेने देते हैं. इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन बट द बेस्ट थिंग आई वुड रिकमेंड इज़ यूट्यूब इट, क्योंकि वीडियोज़ के थ्रू इट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड वॉट कॉल्स एंड पुट्स आर देन मी एक्सप्लेनिंग इट ओवर 1 लाइन्स और 2 लाइन्स. ओके, सो जैसे अगर देखा जाए जनरली आई हेल्प यू आउट हियर. सो डेरिवेटिव्स में और इक्विटी में ये फर्क होता है कि इक्विटी में जब कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, वेयर डेरिवेटिव सेक्शन में आप उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. एम आई राइट मिस्टर फैजल? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. Yeah, exactly. It is, you are trading in lots and contracts जो which is defined by NSE. Which is defined by NSE. Okay, so फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेड करने का ये बेनिफिट रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो आपका रहता है टू ट्रेड इन ह्यूज वॉल्यूम, कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होता है. सो जो नए ट्रेडर्स होते हैं पैसे का करंट जिनका थोड़ा होता है तो उनके लिए फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट काफ़ी लुक्रेटिव होता है. सेकंड बेनिफिट जैसा फैजल आपने बताया उसमें ये होता है कि जो वॉलेटिलिटी होता है यानी कि जो पोटेंशियल होता है अर्न करने का वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैश मार्केट. राइट फैजल? Yes, exactly. So obviously because there is leverage involved, you pay a certain amount. So आपके जो returns है वो magnify होते हैं. At the same point आपके risk भी magnify होते हैं. So it is like a double-edged sword as everyone calls it. But you have to just be disciplined and stick to the basics to earn money in the derivatives market. Now फैजल आपने ये भी मेंशन किया आपने निफ्टी मेंशन किया, बैंक निफ्टी मेंशन किया, फाइनेंस निफ्टी मेंशन किया, फिर आपने ये भी बताया कि कुछ 100-150 स्टॉक्स के भी डेरिवेटिव्स होते हैं. सो एक बार आप ये थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं कि इंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग करने पे यानी कि इंडेक्स के FNO के ऊपर और स्टॉक के FNO के ऊपर क्या डिफरेंस रहता है? क्या दोनों का पोटेंशियल सेम रहता है या दोनों के प्रोस एंड कॉन्स डिफरेंट होते हैं? उसमें आपका क्या ओपिनियन है बीइंग अ ट्रेडर? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस पे? I'll first start with my personal experience. My personal experience तो यही रहा है कि sticking to the index option is definitely better because सबसे main चीज़ the difference between index options and stock options is liquidity. Liquidity index में आपको इतनी मिलती है कि आपको वो stock में it is impossible to get that amount of liquidity as compared to, so as by मतलब जैसे आपका capital बढ़ता रहेगा you will definitely आपका impact cost बढ़ता रहेगा, which is basically जो bid ask का spread होता है that is a little bigger, wider in the stocks than compared to the index. So this is the biggest difference. And अभी recently SEBI ने नया introduce करा है which is physical settlement. So आपको stocks में you are जैसे index में क्या होता है, थर्सडे के दिन जिस दिन भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करते हो यू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, कैश सेटलमेंट हो जाता है. सो जो भी आपके प्रॉफिट और लॉस है वो आपके कैश में सीधा सेटल हो जाएंगे. आपको आपके लेजर में उतना जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. बट अभी इन्होंने ऑप्शंस के साथ क्या किया, अगर आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो सो ये बेसिकली आपको जो उनको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी. इफ़ यू आर बाइंग द स्टॉक तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी स्टॉक्स की. सो दिस इज द बेसिक टू डिफरेंसेस बिटवीन इंडेक्स एंड स्टॉक्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक
तो इंडेक्स में ट्रेड करने का मतलब ये हुआ कि जब मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिनेंस निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूँ। एंड स्टॉक ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि जब मैं रिलायंस के, बंधन बैंक के या HDFC बैंक के, एक्सिस बैंक के, इन सब के स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो जब हम लोग इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं तो ज़्यादातर लोग इंडेक्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, तो उसमें मुझे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आज मैं खरीद लिया कल को बेचने के पास कस्टमर ना रहे। वेरएज ये पॉसिबिलिटी होता है कुछ कुछ छोटे स्टॉक के फ्यूचर ऑप्शन ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि इंडेक्स पे ट्रेड करना थोड़ा बेहतर है। राइट मिस्टर फैजल, एम आई राइट? Yes, exactly. That is exactly the point. Again, I'll support it completely. Liquidity is definitely one of the main criterias, and जैसे now तो you see that rules भी change होते जा रहे हैं. So more the rules keep changing. SEBI just keep changing the rules. So आपको obviously liquidity is one of the most important factors. एक मैं पॉइंट आई लाइक टू मेंशन, स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो आपको लिक्विडिटी मोस्टली, एक तो जो सबसे बड़ी कंपनीज है बेस से निफ्टी 50 कंपनीज, उनमें आपको लिक्विडिटी फिर भी मिल जाएगी। एंड उसमें भी इफ़ यू स्टिक टू दीज राउंड नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस, जैसे अगर रिलायंस का बात कीजिए तो जो भी वो प्राइस पे चल रहा है 1500, 1600, 1700, ये जो राउंड फिगर्स है ये स्ट्राइक प्राइसेस पे ही आपको मैक्सिमम लिक्विडिटी मिलेगी। सो इन केस अगर आपको स्टॉक्स में वेंचर करना है, स्टॉक डेरिवेटिव्स में वेंचर करना है, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टिक टू दीज राउंड फिगर्ड स्ट्राइक प्राइसेस। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट फैजल। आई गेस हम लोग ये तो समझ गए अभी तक कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, बट लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि किस टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे व्यूअर्स आप लोगों ने भी काफ़ी जगह पे सुना होगा, कुछ कॉल ऑप्शन होता है, कुछ पुट ऑप्शन होता है। तो क्या होता है ये थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, डिफरेंस क्या होता है, कब किसे बाई करना है, किसे सेल करना है ना? सो ओवर टू यू फैजल, लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन। Okay, hi. So again, as we discussed earlier, they are futures and options. Futures तो basically जैसे कैश होता है वो वैसे ही चलता है, बट options जो यहाँ पे होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. So they are again further divided into call and puts. So now what I'll do is I'll use my screen. मैं आपको NSE के वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और जो उनका ऑप्शन चेन का एक पेज है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस आर कवर्ड. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ दीज आर, एंड मैं आपको वो भी बताता हूँ कि जैसे मैं आपको पहले कहा था कि जो राउंड फिगर्ड स्ट्राइक प्राइजेस है वहाँ पे कैसे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, वहाँ पे कैसे लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है. सो आज अगर आपने मार्केट्स देखा, आज टुडे द मार्केट्स वर अप, राइट? दे वर अप बाय ऑलमोस्ट से 1%, या आई थिंक 1% निफ्टी अप था. सो आप यहाँ पे देखोगे तो अभी NSE ने क्या, जो भी येलो मार्क्ड है यहाँ पे, बेसिकली ऑल दीज जो भी येलो मार्क्ड है, दीज आर ऑल इन द मनी ऑप्शंस, इन द मनी कॉल ऑप्शंस. इन द मनी बेसिकली ये होता है कि अगर आपका जो स्पॉट प्राइस है उसके नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइसेस है, से स्टार्टिंग फ्रॉम योर 15,600 से लेके गो ऑल द वे डाउन, ऑल दीज आर इन द मनी कॉल ऑप्शंस. पुट ऑप्शंस में वही उल्टा होता है, जो भी करंट स्पॉट प्राइस के नीचे ऊपर वाले प्राइसेस जैसे बेसिकली द 650, 700, 750, 800, ऑल दीज आर इन द मनी पुट ऑप्शंस. एंड यहाँ पे आप देखोगे राइट में, सो ये है ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल ऑप्शंस, और यहाँ पे आप देखोगे सो ऑल दीज आर ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट ऑप्शंस. ना अभी मैं आपको वो बताता हूँ कि जब जो हम लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, इंडेक्स में एज आई सेड इतनी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब आप स्टॉक्स में जाते हो तो लिक्विडिटी, आई टेक अ स्टॉक एग्जांपल, रिलायंस ही ले लेते हैं, विच इज़ द आई थिंक द मोस्ट लिक्विड स्टॉक ऑप्शन प्रॉब्ली देयर. अभी आप मैं रिलायंस का देखता है. सो रिलायंस इफ़ यू सी 2100 अगेन इज़ अ राउंड फिगर. सो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट है जो हाईएस्ट है 7,340 कॉन्ट्रैक्ट्स, विच इज़ अगेन द हाईएस्ट, एंड 2200. आप ये कॉलम देखोगे, यहाँ भी देखोगे तो इट्स द हाईएस्ट. आप वॉल्यूम भी आप देखोगे जो विच इज़ दिस कॉलम यर वॉल्यूम, सो ये भी हाईएस्ट विल बी ऑन दीज राउंड फिगर्स. सो ये ओपन इंटरेस्ट हो गया. अभी ये जो कॉलम है ये ऑप्शन के प्राइजेस हैं. सो जब आपको बेसिकली अगर इफ़ यू वांट टू टेक अ व्यू यूजिंग ऑप्शंस, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना है और अगर आपको बाय पोजीशन लेना है, सो आप क्या करोगे, आप कॉल ऑप्शंस बाय करोगे. आप एक स्ट्राइक सेलेक्ट करोगे, उसके सामने ये उसके प्राइजेस है, ये उसका बिड है, ये उसका आस्क है. यू विल सेलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस विच एवर. आप स्ट्राइक प्राइस अभी कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, आप स्ट्राइक प्राइसेस ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो आपका कैपिटल देख के. अभी रिलायंस का लॉट साइज होता है, आई थिंक द लॉट साइज इज़ 250 फॉर रिलायंस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ 250. सो
250 into the current price of the option is how much you will have to pay to buy one lot of Reliance options. So जब मैं नया नया स्टार्ट किया था, when I was just introduced to options, तो मैं यही करता था, मेरे पास जितने पैसे होते थे उसको मैं लॉट साइज से डिवाइड करता था और देखता था कि कौन सा स्ट्राइक is available cheaper for me. So I used to go it that way, but again that is not the right way. Now when I have a better understanding of options, I know how option prices are again all dependent on so many factors. I'll try to explain the 5 factors. So number 1 is time to expiry, number 2 is strike price, number 3 is the dividend, number 4 is the interest rates, and number 5 is what is it? I think in the volatility, right? IVs जो होते हैं volatility, that is the number 5 factor. So ये जो 5 चीज़ें हैं ये option prices को impact करते हैं. Basically there is a formula, जो formula आप डालोगे तो आपको option price मिलेंगे. So as and when, जैसे आप start तो इससे कर सकते हो, basically just buy call and put depending on your view and your capital. But जैसे आप धीरे धीरे आप उसके अंदर और घुसोगे, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी, वैसे जो ऑल दीज फैक्टर्स है जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया वो आपको अंडरस्टैंड करना इज़ लाइक एकदम नेसेसरी. इट्स कंपल्सरी इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन ऑप्शंस एंड इफ़ यू वांट टू टेक दिस फुल टाइम एंड इफ़ यू वांट टू स्पेंड लाइक अर्न फ्रॉम डेरिवेटिव्स बेसिकली. ओके, गॉट इट फैजल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. सो ये कह सकते हैं कि अगर हम बुलिश मार्केट के बारे में, मतलब हमें लगता है कोई पर्टिकुलर स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग को कॉल ऑप्शन बाई करना है. और अगर हमको किसी लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जैसे रिलायंस या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स जो है वो अगर हमें लगता है नीचे जाएगा तो वहाँ पर पुट ऑप्शन बाई करना है. और जहाँ तक अगर बात राइटिंग का, तो राइटिंग में रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. सो जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिनका कैपिटल कम है या नॉलेज लिमिटेड है, उन्हें अभी राइटिंग को अवॉइड करना चाहिए, बट राइदर बाइंग का कॉल ऑप्शन और बाइंग का पुट ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. राइट फैजल? यस एग्जैक्टली. सो द बेसिक्स जो हमें सब को पता यही है कि जब आप बाय करते हो ऑप्शंस, आपका जो रिस्क है दैट इज़ लिमिटेड ओनली टू द प्राइस, ओनली टू द प्रीमियम विच यू पे टू द एक्सचेंज. सो बेसिकली जैसे यहाँ पे मैंने बताया, अगर आपको 2200 का कॉल ऑप्शन रिलायंस का बाय करना है तो आपको 46 रुपीज़ इंटू 250 जो उसका लॉट साइज है आपको उतना पे करना है. सो दैट इज़ द मैक्सिमम रिस्क व्हेन यू आर बाइंग ऑप्शंस विच इज़ ओनली द प्रीमियम. बट जब आप राइट करते हो ऑप्शंस को, आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है it can go to any amount depending on where Reliance is, where the Reliance stock trades. So जैसे अगर Reliance ऊपर जाते जाएगा, like say 2300, 2400, तो ये जो ऑप्शन है ये 100 हो सकता है, ये 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, depending on the price. But ये जो नीचे में सिर्फ 0 तक ही जा सकता है, right? So जो आपका जो मैक्सिमम लॉस है, it is always the premium which you have paid. So यहाँ पे 53 रुपीज़ है. So हमेशा आपका लॉस जो है 53 ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. Whereas in writing, your risk is unlimited. ओके, सो राइटिंग में रिस्क अनलिमिटेड है. सो फाइजर हमने समझ लिया डेरिवेटिव क्या है, कैश मार्केट डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है, डेरिवेटिव्स के अलग अलग टाइप्स हमने समझ लिए. तो अब थोड़ा देखते हैं कि हमें किस तरीके से डेरिवेटिव में ट्रेड करना है. सो अगर आप अपना प्रोसेस हमें बता सकें कि आप किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करते हैं, व्हाट डू यू सी फर्स्ट, किस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस यूज़ करते हैं, कहाँ पर एंट्री लेना, कहाँ पर एग्जिट करना, कैसे डिसाइड करते हैं. तो एक बार वो प्रैक्टिकल प्रोसेस अगर हम थोड़ा डिस्क्राइब कर पाए, देख पाए, तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है. Right. So because I started as a technical analyst, right? My Kotak में job जो मैं कर रहा था, I was working there as a technical analyst. तो technicals is the first thing which I learned, and I tried to incorporate that into derivatives trading or into every aspect of my trading journey. So what I'll do is, can I use my chart or something? I'll just use my. Yeah, please. Yeah, please feel free to use that. Right. So you can see my screen, right? Yeah, I mean right now I can see your options here. Okay. So. आई गेस हम लोग ये तो समझ गए अभी तक कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, बट लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि किस टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं. जैसे व्यूअर्स आप लोगों ने भी काफ़ी जगह पे सुना होगा, कुछ कॉल ऑप्शन होता है, कुछ पुट ऑप्शन होता है. तो क्या होता है ये थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, डिफरेंस क्या होता है, कब किसे बाई करना है, किसे सेल करना है ना. सो ओवर टू यू फैजल, लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन.
Right. Thank you. So, as you know, I started as a technical analyst, right? So, मैं जो भी trading करता हूँ, it is all उसका base जो होता है, it is all related to technicals. So, what I'll do is I'll share my screen now, and we'll take some example from the charts itself. I'll just remove Kotak Bank shares क्योंकि आज मैं वो देख रहा था, मुझे वो interesting लग रहा था. So this is Kotak Bank, right? अभी जो technicals जानते हैं, I'll try to explain थोड़ा basics जो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ. Basically अगर आप इसका weekly chart देखोगे, so I am a keen follower of the Fibonacci retracements. Okay, so I'll plot a Fibonacci retracement over here. Technicals में क्या बोलते हैं, ये जो zone है, जैसे the 38%, the 50% zone, these are basically like important supports. So अगर आपको अच्छे quality stocks, which is Kotak Bank is again one of the top quality banks out there. So अगर आपको अच्छे quality stocks आपको मिलते हैं ये supports पे, then you can definitely go ahead and risk a long position, right? You can definitely take the risk of buying the stock and by keeping a stop loss. So what you could do over here is अगर हमें derivatives use करना है, so if you're very convinced, then you can, the best way to make money in derivatives, if you're very convinced, you can just go and buy futures. So futures में आपको बस 10-20% pay करना है upfront premium margin, and you can take the position in the futures market and earn. So जैसे कोटक बढ़ेगा, आपको एग्जैक्ट सेम रुपीज़ आप फ्यूचर्स में अर्न करोगे इनटू द लॉट साइज. ओके, जैसे कोटक का लॉट साइज आई थिंक 400 है, सो यू अर्न 400 रुपीज़ फॉर 1 रुपी मूवमेंट इन द कोटक शेयर्स बाय पेइंग 20% से अपफ्रंट प्री मार्जिन्स. बट वेर एज इफ यू वॉन्ट टू नाउ वेंचर इट द ऑप्शंस वे, वॉट यू कैन डू इज, जैसे वी अर्लियर एक्सप्लेन, राइट, अगर आप बुलिश हो स्टॉक पे, सो यू कैन जस्ट गो हेड एंड बाय कॉल ऑप्शंस. यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी कोटक इज ट्रेडिंग एट 1807, राइट? सो यू कैन आइदर बाय 1800 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शंस, 1820, विच एवर प्रीमियम एज आई एक्सप्लेन अर्लियर यू आर कंफर्टेबल विथ, आप वैसे खरीद के कोटक बैंक में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो. और द अदर थिंग इज इफ़ यू वांट टू अगेन मिनिमाइज द रिस्क, जो मैं एक काफ़ी आई यूज दिस स्ट्रैटेजी अ लॉट, इज व्हाट आई डू इज कॉल्ड कवर्ड कॉल्स. सो कवर्ड कॉल्स बेसिकली क्या होता है, आप फ्यूचर्स में लॉन्ग जाते हो और आप कॉल ऑप्शंस शॉर्ट करते हो. सो व्हाट दैट डज इन अ वे इज दैट reduces your risk downside by the premium which you have received in the call option. So that is another way to take a position, and call option is the best way. आपको पता है उसमें आपका रिस्क क्या होता है. So buying just naked call options is nice. Futures में you can just go ahead and buy futures. So these are the basic ways in which you can take a trade in the derivatives market. Okay, so हमने अभी देखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करना है. सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये फायदा होता है कि हमें एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के पॉइंट्स मिल पाते हैं, मतलब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट प्लॉट करने में होता है. अब जो लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको पता है कि अगर एक रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग ऑप्शन लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. जहाँ पर एक सपोर्ट पॉइंट ब्रेक हो रहा है वहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. सो यहाँ अभी चार्ट में हमने देखा कोटक महिंद्रा में किस तरीके से, कोटक बैंक में किस तरीके से हम लोग फिबोनाची के यूज से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, राइट फैजल? Yeah, exactly. As we saw that, and the other supporting point over here was basically जो ये congestion हो रहा है, ये congestion से कोटक बैंक is finally, I feel, is trying to get out now. Bank Nifty is doing good, and Kotak Bank being one of the heavyweights in the banking index should do equally well. So आपने देखा कि there were two supporting points over here. One was Fibonacci, which I give the most weightage to. अगर मुझे quality stocks वहाँ पे मिल रहा है, I will definitely take a long position. And the other being here is I can see a congestion, और मुझे उसमें से I'm anticipating a breakout over here. So that is my view. Okay, and फैजल, how important is volume to you? अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर चार्ट का, जैसे इस पर्टिकुलर केस में कोटक बैंक का, सो वॉल्यूम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप वॉल्यूम को यूज करते हैं कंफर्मेशन के लिए? Yes, definitely I use, so मैं basically price और volumes ही use करता हूँ. So volumes is again an important factor
what I will look as, अभी जो यहाँ पे मैं congestion zone की बात कर रहा था, so basically इसको technical में और एक term I can use which is accumulation, जहाँ पे हम कहते हैं कि जो smart players है they are accumulating this stock at a lower level. So what अभी मुझे यहाँ पे volumes, wait I'll have to plot, right, so I've plotted the, इसमें अभी volumes मुझे इतने कुछ interesting नहीं लग रहे हैं. Okay, so we saw how Fibonacci retracement is really important, जिसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट प्लॉट कर पाते हैं. अगर रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक हुआ है कोई पर्टिकुलर स्टॉक का, इन दिस पर्टिकुलर केस वी सॉ कोटक बैंक, तो वहाँ पर आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कॉल ऑप्शन के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं. और अगर कहीं पर एक सपोर्ट पॉइंट ब्रेक हो रहा है, क्रिटिकल प्राइस पॉइंट जो होता है, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पर आप पुट ऑप्शन पर फोकस कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट प्लॉटिंग तो देख लिया विद हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट व्हिच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल. बट फैजल आई वाज आल्सो क्यूरियस टू नो कि आपके लिए वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट रहता है. अगर आप टेक्निकल एनालिसिस चार्ट से समझ रहे हैं कि कहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पर ब्रेकडाउन आ रहा है, तो वहाँ पर वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए. राइट, सो अगर मैं आपको सच बोलूँ, so price, volume, Fibonacci, these are the basic tools, or these are the only tools I would say which I use in my journey, like which I use in my trading this. So what I'll try to explain again with a chart. जो अभी Fibonacci was one point, and now if you see the other point over here is there is a congestion which is happening over here. आप देख रहे हो कि ये यही इसमें कोटक चल रहा है. So volumes इतने यहाँ पे supportive नहीं दिख रहे हैं मुझे, but if you see जो अभी आप ये कैंडल को देखोगे, यहाँ पे इसने एक पैनिक लो बनाया, यहाँ पे इसने एक पैनिक, ऑल दीज आर जस्ट लोज जहाँ पे लो बना के द स्टॉक हैज ट्राइड टू रिवर्स. सो इट इज़ समवॉट अ डिसेंट कॉल विच आई एम बेटिंग ऑन. सो just look, what I'll try to tell you is just look for candles, long candles जहाँ पे आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं. लॉन्ग लाइक अगर आपको बाय करना है स्टॉक को, लुक फॉर लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स जहाँ पे आपको वॉल्यूम्स इक्वली दिख रहे हैं. सो दैट विल अगेन गिव यू, आपका कन्विक्शन जो है और बढ़ेगा, एंड ब्रेकआउट का जो रिलायबिलिटी है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. सो डेफिनेटली यू कैन कंबाइन वॉल्यूम्स विद प्राइस एक्शन. ओके, सो मतलब अगर हम एक कैंडल देख रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल बना, अगर वहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम भी है तो मतलब वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है. यानी कि अगर एक अपवर्ड ट्रेंड है, वहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो मतलब दैट ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर वो ज़्यादा और पोटेंशियल ऊपर जाने का. वैसे अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है बट देन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिवर्सल हो सकता है. एंड द सेम गोज फॉर अदरवाइज, अगर नीचे स्टॉक गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और गिर सकता है. वैसे अगर एक ट्रेंड है नीचे गिरने का बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिवर्सल आ सकता है. सो अगर एक पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, मतलब वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हम उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस का बेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर वॉल्यूम घटा हुआ है. तो सही, इज दिस व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग फैजल? Yes, that is exactly what I was trying to tell you. But I'll just give you another example now, which is of Bajaj Finance. मैं थोड़ा हाइंडसाइट में जाऊँगा, आपको पीछे लेके जाऊँगा. So I made this post on LinkedIn. अगर आपको चेक करना है तो आप वो हमेशा से you can just log on to LinkedIn and check. So what this is like the prime example जहाँ पे volumes का बेस्ट यूज़ हुआ है. ओके, आप जो ये देखोगे, जो इसने फॉल किया था लास्ट ईयर 2020 में, ओके, आप ये इस कैंडल के साइज देखो, जो उज़ैर जो जस्ट बता रहा था, ये दीज आर सच बिग रेड कैंडल्स, ओके, विच इज़ लाइक स्ट्रांगली बेरिश. बट आप इस पे नीचे वॉल्यूम्स देखो, एज कम्पेयर टू जो वॉल्यूम्स इधर हुए, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट नथिंग वॉल्यूम्स एज कम्पेयर टू दिस. ओके, नाउ अभी आप यहाँ का जो वॉल्यूम्स देखिए, अगर मैं ये वीकली चार्ट है, what I was explaining earlier is again this is like the congestion zone, and यहाँ पे volumes बढ़ना चालू हुआ है. So this is another prime example जहाँ पे volumes आपको definitely support करता है in taking a position. ओके, एंड फैजल अगर आप इंटरडे कर रहे हैं तो आप जनरली क्या टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं? लाइक पहले आप डेली में प्लॉट करते हैं, उसके बाद फिर 15 मिनट्स या हाफ एन आवर 1 आवर किस में जाते हैं, तो टाइम फ्रेम क्या प्रेफर करते हैं आप एक कैंडल का या फॉर टेक्निकल एनालिसिस? अगर आपको सोली इंट्राडे में ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है, देन आई विल स्टिक टू लाइक 15 मिनट इज द आइडियल. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप 1 घंटा पहले रुकिए, डोंट जंप इनटू एनी ट्रेड्स लाइक जो फर्स्ट 30 मिनट्स या फर्स्ट 45 मिनट्स है. लेट थिंग्स सेटल डाउन. 10 बजे के बाद अच्छे से बैठिए अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे, एंड देन टेक अ फ्रेश कॉल while looking at your 15-minute candles or 10 minutes. Doesn't matter, they all around that zone, जो 15 से 10 से 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम वाले कैंडल्स है, whichever you're comfortable in, you can have a look at them and trade intraday. Okay, great. So
जैसे काफ़ी सारे लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाता है कुछ टाइम तक ट्रेडिंग करता है। जैसे जो लोग 15 मिनट्स के कैंडल पे जिनका हाथ बैठा रहता है, कहते हैं जनरली लोग, है ना। सो जिनका हैबिट रहता है 15 मिनट्स के ऊपर, वो ज़्यादातर 15 मिनट करते हैं, कुछ लोग हाफ एन आवर करते हैं। सो जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, जनरली इंट्राडे के लिए लोग 15 मिनट्स वाला फॉलो करते हैं। अब फैजल, आप कुछ इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर सिर्फ और कम्प्लीटली प्राइस एक्शन के ऊपर रिप्लाई करते हैं? No, as I just said, indicators starting में I used to use them, but because most of them are like lagging, right? Lagging उससे कहते हैं प्राइस बढ़ चुका है और फिर वो इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन दे रहा है. सो दैट रियली डजंट मेक एनी सेंस टू मी. माइट एज वेल आप बस कैंडल्स को देखो, कैंडल्स को आप समझो. कैंडल्स, ऑल दीज कैंडल्स आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, राइट? नीचे जाके ऊपर आ रहा है, सो बेसिकली वो बता रहा है कि बाइंग हो रही है वो स्टॉक में. सो आपको कैंडल्स को बेसिकली समझना है, वॉल्यूम को समझना है, एंड द इंडिकेटर्स विच आई जस्ट यूज, फिबोनाची, ये सब बेसिक टूल्स है जो आप यूज़ कर सकते हो. बट इंडिकेटर्स डेफिनेटली आई डोंट रियली बिलीव, बिकॉज अगेन दे आर लैगिंग, सो आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम. ओके, सो आप कंप्लीटली प्राइस एक्शन के ऊपर रिप्लाई करते हैं. ग्रेट. सो अब मैंने देख लिया कि कहाँ पर कॉल ऑप्शन लेना है, कहाँ पर पुट ऑप्शन लेना है. एक बार रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट प्लॉट कर लिया. एक बार अगर क्रिटिकल प्राइस पॉइंट ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप अपना पुट या कॉल ऑप्शन के बारे में ले सकते हैं. सो नाउ फैजल, लेट्स कंसीडर कि हम कोटक में ट्रेड कर रहे थे और वहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट आपने देखा और वहाँ से आपने डिसाइड किया कि आपको एक कॉल ऑप्शन बाई करना है. ठीक है. सो एक बार आपने वो जैसे ही चेक कर लिया तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है? फिर आप कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हैं? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है? कुछ स्ट्राइक प्राइस यूज करते हैं या फिर आप जो करंट प्राइस है उसके ऊपर काम करते हैं? किस तरीके से करते हैं? लाइक लेट्स से आपने ब्रेकआउट नोटिस किया, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है आपका? राइट, मैंने जैसे अभी ब्रेकआउट, सो व्हाट आई विल डू इज, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, मैं कवर्ड कॉल ज़्यादा, दैट विल बी माई फर्स्ट पोजिशन विच आई लाइक टू टेक. बेसिकली मैं फ्यूचर्स को लॉन्ग करूँगा एंड कॉल ऑप्शंस, जो OTM कॉल ऑप्शंस है उनको मैं शॉर्ट करूँगा. सो उसमें क्या होता है, आई जस्ट गेट बेनिफिट जहाँ पे मेरा जो रिस्क है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है. जो मुझे प्रीमियम मिलता है कॉल ऑप्शंस के थ्रू, उतना जो रिस्क है वो मेरा नीचे डाउन साइड में प्रोटेक्ट हो जाता है. So that is the best, like the best idea which I can come through. And the other is you can trade spreads using options. You can buy a call option, say 1800, right? हम 1800 का कॉल का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय कर सकते हैं और एक OTM, एक ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आप सेल कर सकते हो. सो इसमें भी क्या होगा, आपका जो रिस्क है इज़ लिमिटेड अगेन बिकॉज यू आर बाइंग एन ऑप्शन, बट आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है व्हेन यू आर सेलिंग ऑप्शंस विद द प्रीमियम यू रिसीव. सो दीज आर द टू वेज यू कैन ट्रेड स्प्रेड्स एंड द अदर इज यू कैन डू कवर्ड कॉल्स. बट ऑल दिस इज, आपको हमेशा पोजीशन लेने के पहले आपको आपका जो रिस्क है, ऑलवेज नो दैट बिफोर टेकिंग अ पोजीशन, विच दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, एंड देन यू कैन वेंचर इनटू पोजीशंस ऑफ योर चॉइस. ग्रेट. नाउ सो कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए प्रॉफिट से पहले ज़्यादा लॉस को देखना पड़ता है. स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट मिनिमाइज योर रिस्क देन ऑब्वियसली आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहना. सो फैजल, कुड यू प्लीज सजेस्ट हाउ डू वी मिनिमाइज आवर रिस्क इन द स्टॉक मार्केट, और आप खुद किस तरीके से स्टॉप लॉस? राइट. सो क्या होता है, स्टॉक मार्केट जब लोग सुनते हैं सबको यही लगता है कि इट्स एन ईजी वे टू मेक मनी. मूवीज़ बनती है, ये बनते हैं जहाँ पे इट्स ऑल जो रोज़ी पिक्चर है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बंदा ओवरनाइट मिलियनर हो गया. बट द ट्रूथ इज, सो पीपल लुक एट दीज थिंग्स एंड दे कम इनटू द मार्केट थिंकिंग कि इट्स जस्ट ईजी मनी, राइट? व्हाट दे डू इज दे डोंट एडुकेट देयरसेल्फ. सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है विच हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट to minimize the risk in the derivatives market is educate yourself. So the most important point I would like to make here on this platform is you have to educate yourself. As we discussed earlier, आप NISM के courses कर सकते हो, और there are many just such courses, CFA हो गया, CMT, FRM, there are many such courses which you can pursue in order to educate yourself, and इससे आपको जो है रिस्क का एक अलग परसेप्शन आपके दिमाग में क्रिएट होगा which will help you in the long run. So the basic जो चीज़ है I would like to tell is educate yourself, and always, as I again said earlier, जो whenever you take a position, आप अपने जो रिस्क और रिवॉर्ड है आप उसको पहले से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इतना मेरा रिस्क होने वाला है ये पोजीशन में और इतना मेरा रिवॉर्ड होने वाला है. रिवॉर्ड फिर भी सेकेंडरी है. रिवॉर्ड यू कैन अगेन, आप जैसा पोजीशन एंट्री लेते हैं उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, बट जो रिस्क है
वो आप अपने दिमाग में पहले ही डाल दीजिए, पहले ही आप ये समझिए कि अगर नुकसान हुआ तो मेरा कितने का नुकसान होगा, ये लॉस आप अपने दिमाग में डाल दीजिए. सो व्हाट विल हैपन इज, जब आप पोजीशन लोगे आपका जो इमोशन है वो थोड़ा इट विल बी कंट्रोल्ड बेसिकली, बिकॉज यू नो कि वर्स्ट केस में आपका कितना लॉस होने वाला है. सो आपके दिमाग में हमेशा वही चलेगा, राइट, क्या होगा, मैं इतना सा मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, उतना ही मेरा लॉस होगा, राइट, उससे ज़्यादा नहीं होगा. सो दिस विल अगेन हेल्प इन योर ट्रेडिंग. एंड द अदर थिंग what I would there's another thing which I'd like to make is, आप जो आपका ट्रेडिंग का जो स्टाइल है उसको आप ट्राई कीजिए कि आप उसको बैक टेस्ट करिए. बेसिकली आप एक रूल क्रिएट करिए कि जैसे मेरा अभी मैं अपना रूल बताया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे कोटक बैंक के शेयर्स अवेलेबल थे, कंजेशन जो जोन था, सो आई विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन. सो वैसे आप ट्राई करिए कि जो आपके जो लॉन्ग लेने के बेट जो रूल्स है उनको आप लिख के रखिए, किधर एक्सेल पे लिख के रखिए या किधर भी लिख के रखिए. सो व्हाट विल हैपन इज, बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन यू लुक एट दीज रूल्स, एंड इफ द रूल्स सैटिस्फाई द क्राइटेरिया यू विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन. सो व्हाट विल हैपन इज, आप अपने आप को डबल गैस नहीं करोगे पोजीशन लेने के बाद. कभी कभी ऐसे होता है पोजीशन आपके अगेंस्ट जाता रहता है, आफ्टर टेकिंग अ पोजीशन आपका दिमाग यही बोलता रहता है, अरे गलत हो गया, टाइम टू एग्जिट. बट व्हेन यू मेक दीज रूल्स बिफोर हैंड दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स in a much efficient manner. And the other point is defined risk reward. So or derivatives में क्या है, there are multiple strategies, right, which you can create using options. So you can always increase your probability of success using these strategies, which again comes back to my first point. आप अपने आप को पहले educate करिए and then आप ये सब strategies में घुसिए. So all this is going to help you. So these are the basic points I think Uzair जो मुझे लग रहा है which you can minimize the risk while trading in the derivatives market. Great. So अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेट योरसेल्फ, और गवर्नमेंट या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कोर्सेज करिए जैसे NISM, CFA, FRM, राइट. और उसके बाद अगर जैसे इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोफेशनल, एक साइड इनकम में क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स का हेल्प ले सकते हैं. यू कैन गो थ्रू एन एडवाइजरी और उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं. बट फैजर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो रहेगा कि अगर टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू कैसे ब्रेकआउट करना है वो तो हमने देख लिया, बट टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू कैसे स्टॉप लॉस हमें अंडरस्टैंड करना है, किस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाने पर, अगर वो बता सके तो. So what I'll do is I'll again go back to the chart and I'll try to explain it using the charts how I place my stop loss and my targets on basis of what. So मैं थोड़ा पीछे गया हूँ. This is 10 दिन पहले का ये चार्ट है कोटक बैंक का. So आपने यहाँ पे देखा कि एक गैप अप हुआ है, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है, एंड फिर से यहाँ पे एक you can call it a hammer also. If you combine these two candles you can call it a bullish engulf also, if you combine that if you just take it separately. So again this is like a good setup. So अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, most likely अगर मैं if I'm waiting for confirmation which is this price 1736, right, so I wait for this price to enter a long position, and जो मेरा stop loss होगा वो most likely candle low ही होगा. जो ये जो red candle है इसका लो इज़ आइडली अ वेरी गुड स्टॉप लॉस, बिकॉज वॉट यू हैव सीन इज यहाँ पे ये कोटक बैंक इतना नीचे गया है एंड देन इट हैज़ ऑल रिवर्स्ड ऑल ऑफ इट्स लॉसेज, राइट. सो ये जो लेवल है, आई जस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर हियर. राइट. सो 1728. अभी आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा क्या करो, इसके जो एटलीस्ट कपल ऑफ रुपीज़ इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि क्या होता है ये वापस से ये लो पे टेस्ट कर सकते हैं प्रॉब्ली इसके नीचे, एंड देन इट माइट रिवर्स. सो व्हाट आई आइडली डू इज़ आई विल कीप कप 1-2 रुपये का मैं और जगह रखता हूँ, एंड देन I'll put that as a stop loss. So see over here 1728 है. So what I'll do is I'll keep my stop loss at say 1724.9. मैं कभी ये गलती नहीं करता हूँ, I never place my stop losses at like a round figure, क्योंकि क्या होता है there are large number of orders which are placed at these round numbers. For Kotak Bank say it's 1725, 720. So what whenever you trade
another lesson which I would like to give my viewers here is always place your stop loss just below a round number. जहाँ पे यहाँ पे राउंड नंबर में 1725 पकड़ रहा हूँ, आप जस्ट उसके एटलीस्ट 10-20 पैसे नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए. सो से मेरा स्टॉप लॉस ये रहा 1724.5 और 9, और मेरा एंट्री प्राइस रहा 1736. सो मेरा रिस्क कितना हुआ ये ट्रेड में? मेरा रिस्क हुआ 24-34 से 12 रुपीज़. 12 रुपीज़ रिस्क हुआ मेरा इस ट्रेड में. सो आइडियली इंट्राडे व्हेन आई एम ट्रेडिंग माय रिवॉर्ड इज़ यूजुअली 1.5 टाइम्स माय रिस्क. मैं इतना रख के चलता हूँ, and on basis of that my reward is calculated. So what I'll do is I'll multiply 1.5 into 12 which is say 18 rupees, and 18 rupees में इसके ऊपर अपना टारगेट सेट कर दूंगा 1736 के ऊपर, which is say कितना हो, 1736 plus 18 is 1754. Yeah, so 1754 will be my target. My stop loss will be somewhere around 1724 and I'll enter a position. And what also you can do is you try to monitor this position. आपको लग रहा है कि ये मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, देन जस्ट कंटिन्यू ऑन टू दैट पोजिशन. बट कहीं आपको लग रहा है कि द मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग और दिस, सो यू कैन ऑलवेज एग्जिट योर पोजिशन. सो दिस इज द अदर थिंग विच आई डू इज, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ एक्टिवली, आई कीप मॉनिटरिंग माई पोजिशंस. सो दैट इज माई वे. ओके सर, मॉनिटरिंग में आप क्या देखते हैं स्पेसिफिकली? जैसे अगर आपको किस तरह से पता चलता है कि आपने जो टारगेट लिया वो टारगेट थोड़ा ज़्यादा है, शायद अचीव नहीं करेगा, मुझे टारगेट से पहले बुक कर लेना चाहिए. सो आप क्या देखते हैं उसमें? लाइक अगर कैंडल का स्ट्रेंथ देखते हैं या वॉल्यूम देखते हैं, क्या स्पेसिफिक टॉपिक? राइट. सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल जस्ट लुक फॉर रेजिस्टेंसेस. ओके, जैसे अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ इसका जो प्रीवियस हाई है विच इज़ दिस 1745. सो एक बार जब स्टॉक यहाँ पे आता है, मैं एक्टिविटी देखूंगा कि वहाँ पे कैसा एक्टिविटी स्टॉक इज, क्या वो प्राइस से वापस से रिवर्स हो रहा है, या तो वो प्राइस को वो टेस्ट इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक इट आउट. सो योर इफ़ यू सी अगेन वहाँ पे वॉल्यूम्स देखेंगे, सो वॉल्यूम्स आर ऑन द राइज. सो व्हाट आई थिंक योर इज डेफिनेटली कोटक बैंक इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लेवल ऑल्सो विच इज 1745 एंड ट्राइंग टू हेड अपवर्ड. सो इंट्राडे में द अदर थिंग इज look at volumes and the size of your candles, the things which are earlier explained. Candles का size भी बढ़ रहा है, volumes भी बढ़ रहा है. So this is the best जो factor which is telling you that Kotak Bank wants to go up in that particular chart. गॉट इट. सो अगर वहाँ पर एक छोटा कैंडल बनता है या कैंडल ऊपर जाने के बावजूद भी अगर वॉल्यूम नीचे गिरता, तो वहाँ पर आप पोजीशन से जल्दी निकल जाते हैं एज कम्पेयर टू वेटिंग फॉर द टारगेट, क्योंकि वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं लगता वहाँ पर. बट अभी जो हम चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर कैंडल भी बड़े बन रहे हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, मतलब ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग. सो वहाँ पर आप आराम से मार्केट में वेट करके टारगेट अचीव कर सकते हैं. राइट. एग्जैक्टली. आप वो कर सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो. सो इससे क्या होता है, आप ये सब चीज़ों से आप अपना प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस का वो इंक्रीज कर रहे हो. सो ऑल दिस रियली हेल्प्स इन द लॉन्गर रन. बट मेक श्योर जो ये सब जो रूल्स है वो आपके अगेन एज आई सेड लिखे हुए हो, सो यू कैन ऑलवेज फॉलो देम. आपको क्या, जो आपके जो रूल्स है उससे आपको डिविएट नहीं होना. यू ऑलवेज हैव टू स्टिक टू दोज बेसिक्स विच यू हैव क्रिएटेड एट द फर्स्ट प्लेस. ग्रेट. सो काफ़ी एक अच्छा एक सजेशन है फैजल के साइड से कि हमेशा अपने रूल्स, यानी कि जो कंडीशन है, जैसे अगर ये होगा, ये पर्टिकुलर कंडीशन मैच होगा तो ही मैं बाई करूँगा. क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास नॉलेज तो होता है, बट यू नो स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर एक साइकोलॉजी, जो इन्वेस्टर का साइकोलॉजी होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. मतलब क्या, कभी कभी अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, टारगेट आ गया, फिर भी लोग अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, बल्कि थोड़ा और ऊपर आने का वेट करते हैं और वहाँ से फिर स्टॉक दोबारा नीचे आ जाता है. सो इंस्टेड ऑफ बुकिंग प्रॉफिट, लोगों का लॉस हो जाता है. या कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइसेस गिर गए, स्टॉप लॉस एक्चुअली आ गया, लेकिन वहाँ पर आपने हार्ड स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, आपने स्टॉप लॉस प्लेस करके रखा था और लोग वहाँ पर रुक जाते हैं ट्रेड में, ये सोच के कि शायद दोबारा रिवर्सल ऊपर जाएगा. बट ज़्यादातर क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है और लोग ज़रूरत से ज़्यादा लॉस बुक कर लेते हैं. सो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपको स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन होना पड़ेगा. जो टारगेट और स्टॉप लॉस आपने ट्रेड में एंटर करने से टाइम सोचा था, उसी को फॉलो करिए. मार्केट में घुसने के बाद फिर अपना इमोशन चेंज करके, इमोशन की वजह से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को चेंज मत करिएगा. ज़्यादातर डिसिप्लिन फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है. सो हमने देख लिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है डेरिवेटिव्स का, हाउ टू ट्रेड डेरिवेटिव्स, हाउ टू सेफ गार्ड योर मनी, हाउ टू मिनिमाइज योर रिस्क, और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल कैसे रहे. सो काफ़ी अच्छा वैल्यू ऐड किया फैजल ने यहाँ पर.
सो एनीथिंग एल्स फैजल, कुछ और टिप्स, सजेशन, रिकमेंडेशन आप नए ट्रेडर्स, नए व्यूअर्स को हमारे देना चाहेंगे? या सो यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट जहाँ पे आपने साइकोलॉजी को लाया, जहाँ पे आपने कॉमन जो ह्यूमन करता है आपने उसको पॉइंट आउट किया. सो अगेन आई वुड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू सपोर्ट दैट विच यू जस्ट मेड इज साइकोलॉजी जो होता है, इट्स सच एन अंडररेटेड थिंग इन द स्टॉक मार्केट्स. जब नाउ at this moment I'm trading full time, right, the markets, so I know how important psychology is in while trading. So हम इसको काफ़ी ये सब चीज़ें और हमें बुक्स पे भी सिखाई नहीं जाती है. ये सब चीज़ें आप ओवर टाइम डेवलप करते हो and then you try to master it by again staying disciplined as the point you made. So always stick to the rules, stick to the basics. ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करिए, सिंपल रखिए. आप पैसे डेफिनेटली बनाओगे if you keep things simple. स्टिक टू रूल्स. पोजीशन साइजिंग पे जो आप कभी ऐसा नहीं करिए कि मैं, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही आई एम वेरी कन्विंस, सो आप एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन साइज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप नंबर ऑफ शेयर्स यू बाय. सो नेवर डू दैट. ऑलवेज नो योर रिस्क, ऑलवेज नो योर रिवॉर्ड एंड जस्ट कीप ग्रोइंग एवरीवन. थैंक यू. Well said, Fazal. Training our psychology for the stock market is really important. Now let's move on to the next segment of our show where we answer questions asked by our viewers. The first question is from Mr. Sharad and he has asked how to plot Fibonacci retracement. Now even in the beginning of the show हम लोग ने डिस्कस किया था कि how Fibonacci is a very important tool to plot the resistance and support point. So अब देखते हैं उसको plot कैसे करना है and how to use it. So over to you, Fazal. Alright, okay, thank you Uzair for the question. So basically Fibonacci retracements, in technicals we use it to plot supports and resistance points. अगर आप buying कर रहे हो तो आप support के लिए look करोगे और अगर आप selling कर रहे हो so you look out for resistances. So basically इनके कई levels होते हैं. There is this 38.2, 50%, 61%. So all these are such levels in the Fibonacci retracements. So all these points again they act as support and resistances. And सबका जो basically style होता है वो थोड़ा अलग होता है use करने का. जैसे for me I have set some rules, okay, so I'll try to first match those rules and then I'll plot the Fibonacci. So some of the rules can be आप you look for a trending move. आपको जो stocks में एक trending move दिख रहा है आप वो stocks में Fibonacci retracements plot करोगे and that will again just increase the probability of the success ratio of that trade. So now I'll again go back to my screen and I'll share one of the charts which जो recently मैंने use किया था to plot the retracements. So now you see in the recent couple of months here, the metal sector has been doing really well, right? The metal sector, the pharma sector. So these are the sectors जहाँ पे the trend is upward. And if you see this rally जो पूरा April mid से लेके I think March mid, almost 20-30 trading sessions तक ये move था. And this move में, as I earlier said, it's trending plus it is with volumes. So what I'll do is I'll plot the Fibonacci retracement here. So now what you do is जो वो trend का सबसे lowest point होता है आप वहाँ से start करते हो plot करना. So इस ये वेदांता का चार्ट है, इसका low point है 209.75, right? So I'll start plotting the Fibonacci retracement from here and I'll go all the way to the end जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये trend थोड़ा सा pause हो गया है, right? अभी ये मुझे कभी मालूम पड़ेगा after I see these candles जहाँ पे the price is falling, right? It's not rising. So what I'll do is जो high point है उधर मैं अपने Fibonacci plotting को end करूँगा, which is the level जो इसका high है 296 and 296.30. So यहाँ पे अभी बेसिक्स जो है पहले वो हो गया. यू जस्ट लुक फॉर अ ट्रेंडिंग मूव. अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक में कुछ मूवमेंट नहीं है, वॉल्यूम्स लैग करे, सो जस्ट स्टे अवे. देयर आर मेनी स्टॉक्स इन द मार्केट. जस्ट लुक फॉर स्टॉक्स विच आर ट्रेंडिंग एंड विच हैव वेरी हाई वॉल्यूम्स इन दैट ट्रेंडिंग मूव. नाउ यू सी वेदांता ओवर हियर. सो अभी इसका जो 38% है इट इज़ 263. सो नाउ स्ट्रॉन्गर द रैली, अर्लियर द स्टॉक्स विल रीबाउंड फ्रॉम दीज सपोर्ट्स. The crucial support here is the 38.2% level, which is 263, the 50% level, which is 253. So ये दो points है जहाँ पे you look to buy Vedanta.
बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग अप मूव. नाउ अभी इसका मूव देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो पॉसिबल है यहाँ इसने ना यहाँ से ही रिवर्स हो गया फ्रॉम द 38.2% लेवल विच इज 263. सो वॉट यू विल डू इज ओवर ईयर यू विल कम एंड लुक फॉर सम रिवर्सल, सम कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस. जैसे यहाँ पे अभी एंगल्फ टाइप ऑफ फॉर्मेशन है. सो यू कैन ऑलवेज लुक एंड बाय एट दीज लेवल्स. Depending on your time horizon you will set stop loss for the same and targets for the same. अभी ये हो गया buying में. The same thing you will do it like will happen vice versa on the selling side. You look for trends जहाँ पे strong downtrend है, एक bounce आ रहा है and at those bounce resistances आएंगे, वहाँ पे आप sell करने की Okay, Faisal, but let me interrupt you for a while. So फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम लोगों को कितना टाइम फ्रेम लेना चाहिए प्लॉटिंग करने के लिए? Right. So basically see technicals में time frame is never really a constraint. आप जितना लंबा देखोगे उतना अच्छा है, मैं तो बोलूँ. People think technical is like very short term in nature, but I don't agree to that. You can put a monthly chart over there, you can put a weekly chart. Wherever you see a trending move, basically just a trending move with volumes, you can plot the Fibonacci retracements on those charts. That can be yearly. अभी जैसे मैं एक निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ. निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं अब हम. Now I'll just take a very longer time frame chart, okay? This is the monthly chart. Now you have to इसमें the most difficult bit is identifying from where the trend is beginning and where the trend you think is going to end, right? So यहाँ पे according to me the 2008 lows जो थे, it is like a very crucial bottom, right? And जो top था it just happened before the COVID crisis. So यहाँ पे if you see I plotted this on a monthly chart, so it works wonderful on these time frames too. You just आपको ये जो levels है ये आपको याद रखना है, 38.2 and 50%. What I do is if you are confused between the two levels, आप दोनों level पे आप 38% पे 50% enter करिए and the 50% जो level आएगा उस पे आप second tranche buy करिए. So that will again give you a good enough like आपको एक support मिलेगा अच्छा to enter the long trade. Okay, got it, Faisal. So हमें जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है उसके लो पॉइंट से पहला पॉइंट को प्लॉट करना है एंड देन जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट में जा करके अपना सेकंड पॉइंट को प्लॉट करना है. उसके बेसिस पे हमें अलग अलग डिफरेंट परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट मिलेंगे और जैसे ही वो पर्टिकुलर प्राइस लेवल ब्रेक होता है उसके बेसिस पे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजल. We have already talked about targets and all. So the next question is from Ayush and he is asking how to decide target of a particular stock if it is at all time high. So अगर हम थोड़ा मैं इसमें आर्टिकुलेट कर देता हूँ. So if अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में हम टेक्निकल एनालिसिस में इस तरीके से टारगेट डिसाइड करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक हुआ है तो उस रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद हम लोग उसे बाई करते हैं एंड देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा टारगेट बनता है. बट देन फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है या फिर अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम लोग किस तरीके से टारगेट प्राइस डिसाइड करें. सो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट, फैजल. Right, that is a very interesting question. Actually, it is one of the things जहाँ पे most of the people are confused कि क्या करना चाहिए, right? Because the stocks is forming a new high. आपको ऊपर के levels में resistances calculate करने को नहीं आ रहा है. So again, so I'll go back to the chart. So now what happens here is Fibonacci में there is another thing called as Fibonacci extensions. Okay, so उसमें क्या होता है? You basically जो trend होता है, I'll just plot extensions over here. So Fibonacci extensions is a way where you can plot you can get targets for the stock. So basically what happens is if you see it's technicals में एक pattern होता है ABCD, right? For viewers who don't know what I'm talking about can just Google it for once. But this is called the ABCD pattern, right? So what happens over here is जो rally होता है, say from here the rally started from the 2000 levels and it went all the way to 11,000 or 12,000 levels, okay? And now you calculate
द सेम फ्रॉम द लोज ओवर ईयर, जो कोविड के जो लोज थे वहाँ से 76 80, एंड वो जो ये जो प्राइस है राइट, जितना जो इतना ये राइज हुआ है, आप उतने ही पॉइंट्स निफ्टी के ये वाले लेवल को ऐड करोगे एंड देन यू विल गेट अ टारगेट फॉर अपवर्ड्स. सो यहाँ पे जैसे अभी टारगेट आ रहा है 17,643. Now on longer term charts, this is like one of the key targets which everyone should look out for on the Nifty charts. And I'll share another way what I use to calculate targets when stocks are like at all-time highs. Again, I'll go back to Vedanta, or if you can give me any stock. चलो वेदांता ही ले लेते हैं. वेदांता में शॉर्ट टर्म टाइम में अपन देख लेंगे. Yeah, so what happens in आप stocks में ज़्यादातर देखोगे the stocks which are rising or the stocks which are falling, which are in a strong trend, what they do is they'll go up, they'll form a sideways consolidation pattern, and if they are really strong, they'll again try to break that and go upward, right? So this is basically in technicals called the flag pattern, right? So now what happens here is जो अभी जैसे वेदांता का यहाँ देखोगे, now you see Vedanta over here. Yeah, Father, sorry to interrupting, but could you please articulate कि Fibonacci extension के लिए भी क्या same rule रहेगा as Fibonacci retracement, which is to plot at a bottom and then at the highest point same trend के साथ same rule रहेगा या अलग रहेगा extension and इसके लिए? Exactly, the rule will always right. The rule will exactly be the same. What you do is आप एक low point को पकड़िए जहाँ से आपको लग रहा है ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, आप एक हाई पॉइंट को पकड़िए जहाँ पे आपको लग रहा है कि ट्रेंड खत्म हो गया है, and then you plot the C point where you feel that the stock has reversed from the support, like the 50% support or the 38.2% support. So it's this formation A, B, C and D. So आपको A, B, C points पता है, A, B और C. You plot D, आपको Fibonacci extension खुद ही plot करके दे देगा, and that will be your upward target. Right, that is one way. And the other way is this, where जो पैटर्न होता है, ये फ्लैग पैटर्न, बेसिकली ये पोल होता है और ये साइडवेज कंसोल, दिस इज अ फ्लैग. सो व्हाट यू डू इज जो पैटर्न का हाइट होता है दैट यू कैन ऐड टू द फ्लैग ओवर हियर. सो अभी जैसे आप ये देखोगे वेदांता का राइज हुआ है 210 से लेके 290, दैट इज 90 पॉइंट्स. सो दोज 90 पॉइंट्स यू विल ऐड टू द सपोर्ट लेवल फ्रॉम हियर विच इज 265. सो 265 प्लस 90 इज 355. सो 355 इज योर target for Vedanta, just looking at the flag pattern and calculating it on basis of that. Okay, Faisal, got it. So other than Fibonacci extension, हम लोग patterns का भी use कर सकते हैं to set a target for a stock which is at all time high based on the pattern. जैसे अभी इस एग्जांपल में हमने वेदांता का देखा कि किस तरीके से हमने वहाँ एक फ्लैग के एंड पे अगर ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पर हम उसका जो पुराना जो पोल है उस पोल का सेम पोर्शन को ऐड कर सकते हैं फ्लैग के एंड पे, राइट फैजल? Yes, exactly. Flag pattern or rectangle consolidation pattern. So wherever you see consolidation, आप basically क्या करिए, वो consolidation का height आप breakout point को add करिए, that will again give you upward target. Or this is one of the ways. Or rest you can just do is if in technicals, right? If the stock just keeps on forming higher highs, आप क्या देखोगे, जो stock चल रहे हैं वो चलते जा रहे हैं. So in that case what you can also do is you can always trail your stop losses. आप क्या करिए, अपना stop losses trail करते जाइए, and targets, just don't think about the targets, just keep on riding the trend. That is another thing which I do and which the viewers can definitely do. राइट, सो राइडिंग द ट्रेंड काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है इन्वेस्टर्स का, जहाँ पर लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके ऊपर लेके जाते हैं विद द स्टॉक, और जहाँ तक स्टॉक ट्रेंड करके ऊपर जा रहा है उसका बेनिफिट उठाते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय सुमैया इज वीकली इंडेक्स ऑप्शंस वर्सेस मंथली इंडेक्स ऑप्शंस. नाउ इसके बारे में थोड़ा आर्टिकुलेट कर देता हूँ व्यूअर्स के लिए. सो ऑप्शंस दो अलग अलग एक्सपायरी में अवेलेबल होते हैं. एक वीकली ऑप्शन होता है जो कि हर वीक एक्सपायर होता है, एवरी थर्सडे ऑफ द वीक. एंड देन वी हैव मंथली ऑप्शंस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अवेलेबल, जो कि हमारा एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को एक्सपायर होता है. एंड दोनों का काफ़ी अलग अलग नेचर है. सो फैजल, इसमें अगर आप आर्टिकुलेट कर सकें कि किस ये ऑप्शन किस लिए बेस्ट रहेगा, किस सिचुएशन में इंसान को वीकली ऑप्शन लेना चाहिए, किस सिचुएशन में मंथली ऑप्शन लेना चाहिए. ओवर टू यू फैजल.
Right. So SEBI ने क्या, I think a couple of years back or 2017 I think is when they introduced the weekly options, right? So now what the weekly option does is उन्होंने क्या किया है, हर एक Thursday को they have set an expiry for the weekly options. पहले उन्होंने बैंक निफ्टी में introduce कराया था, and then later when the response was good, the volumes picked up, they introduced the same in the Nifty index. So every Thursday is an expiry for the index options, and the monthly options as usual is the last Thursday of the month. So now what happens is, because as I earlier mentioned, जो options होते हैं they consist of like intrinsic value and extrinsic value, right? Extrinsic value में क्या होता है, there is this time value factor and there is the IV factor, the volatility factor. So because weekly options का जो time limit वो कम होता है, उसकी वजह से ये ऑप्शंस जो है एकदम फास्ट और डीके करते हैं, राइट? एंड जो डीके है वो एक सेलर के लिए इट्स लाइक हिज फेवरेट थिंग, बट फॉर ऑप्शन बायर्स दे डोंट लाइक थीटा डीके, राइट? बिकॉज दे वांट द ऑप्शन प्राइसेस टू गो अप. सो व्हेन द थीटा डीकेस, द ऑप्शन का वैल्यू कम होता है, बायर्स को लॉस होता है और सेलर्स को प्रॉफिट होता है. So that is why what I think is, if you are selling, definitely weekly options is the most preferred one, because the probability is again in your favor. थीटा डीके होता है, ऑप्शन का वैल्यू गिरता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है. बट जो ऑप्शन बाय करते हैं, अनलेस उनको लग रहा है कि एक स्टीप मूव आने वाला है, देन आई वुड डेफिनेटली नॉट सजेस्ट कि आप वीकली में वेंचर करिए, आप मंथली में ही बाय करिए. द liquidity and the strike prices, they're almost same, offered in both the expiries. So you stick to monthly expiries and buy in the monthly. But for sellers, I prefer the weekly expiries because of the theta decay factor. Got it, Faisal. So, but then इसमें और एक क्वेश्चन उठ के आता है, थिंकिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ डे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर जो सेम डे बाइंग सेम डे सेलिंग करता है, क्या उसके लिए भी दोनों सेम है या अलग रहेगा? तो एक डे ट्रेडर के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? Day maybe if there is a seller, definitely the weekly option because of the decay, just because of the decay. But if they're a buyer, they have a choice of the monthly. For sellers, I'll not prefer the monthly. And also the other thing which I wanted to point out is, जब आप when you enter into the weekly options, you have also another क्या बोलेंगे, आपके पास और एक मौका है, आप क्या कर सकते हो, you can move into different expiries. But जब आप monthly expiry trade करते हो, or say in stocks, because they are only monthly, you're always stuck in that monthly position. But index में you can just keep moving, switching between different expiries. So that is again a plus point of weekly expiries over monthly. Thank you, Faisal, for answering this. Now let's move on to the next question by Rahul. And he asks, what is scalping and who should scalp in the market? So Faisal, if you can take this question. So basically scalping is when people, when someone is buying huge quantities in very short time, मतलब they are in the trade for like say 1 minute, 2 minutes or even seconds, sometimes 10 seconds, 15 seconds, but they'll do it, आप वो multiple times करोगे तब आपको profit दिखेगा, right? So you're buying huge quantities and you're in the trade for very short time, but you're doing it multiple times, so that profit को वो बढ़ा देता है. And the way you can do this is, you will have to go in very short time frames, like you can look at 1 minute candlesticks, 5 minute candlesticks, and you have to look for momentum and volume. जहाँ आपको दोनों दिखेगा, you can definitely enter it, because you see most of the move intraday will happen on just 1 minute time frames or 5 minute. आप देखोगे charts, आप 5 minutes का time frame देखोगे, they have just gone up vertically. So that is where the scalpers come in. They buy quick, get out quick, and try to make money that way. Okay, Faisal, so what I can understand from this is कि हम scalping में छोटे momentums को capture करते हैं stock market में, and we buy or sell huge quantities, and also the number of trades that we do per day is higher, right, Faisal? So basically scalping के लिए you have to be on your screen for the whole time whenever the market is on, because you don't really know when the opportunity will come in, right? You just don't know when the stock will rise. वो कभी सुबह भी बढ़ सकता है, कभी 12 बजे के बाद भी बढ़ सकता है, और कभी last half an hour में भी बढ़ सकता है. So you need a person who is constantly on the screen, constantly tracking the volumes, कहाँ पे कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम ब्रेक हो रहा है, प्राइस ब्रेक हो रहा है, and then enter in that way.
So you need someone who's constantly on the screen and minutely observing the stocks. ओके व्हाट इट फैजल सो स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग उनके लिए बेस्ट है जो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जो अपना मार्केट आवर्स में कंप्यूटर के सामने बैठ सकते हैं और कंप्लीटली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। बट देन फैजल व्हाट अबाउट कैपिटल, इज स्कैल्पिंग फॉर एवरीवन या क्या स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कम कैपिटल में चल जाता है? इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं अगर आप? No, because you are in intraday only. So right now the margins have been increasing intraday. So margin में इतना differences because of the SEBI's new rule is less impacted. But still in equities you still have some amount of margin. So you definitely capital की इतनी ज़रूरत नहीं है. But you need a decent capital and it is a risky strategy, right? Because ऐसा नहीं हो आप you are entering in huge quantities and what if the price just falls? So आपका जो your loss will also get multiplied. So it is again for people who know, who understand the risk, who understand all these parameters and they can do scalping. So it's a little bit, आप जब थोड़ा professional हो जाओगे is when I recommend you do scalping. ओके ग्रेट फैजल। सो स्कैल्पिंग उनके लिए है जो पहली बात जिनका रिस्क एपेटाइट हाई रहे, हु कैन एक्चुअली टेक सम रिस्क इन द स्टॉक मार्केट। सेकंड कि टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रहे उनके पास स्टॉक मार्केट में। थर्ड ऑब्वियसली नॉलेज रहे, इनफ नॉलेज टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द मार्केट एंड टेक ओपिनियंस ऑन दैट। Also another point I'd like to make is execution, right? आप इतना fast trade ले रहे हो, so you have to be hands on your dealing skills, like buy sell. जरा सा mistake इधर उधर हुआ, आपके जो पूरे दिन का profit आपके एक हाथ के mistake की वजह से जा सकता है. So you have to have really good execution skills. Okay, got it फैजल। So scalping में you have to be really quick. So if you're an individual जिसका decision making power अच्छा है, जो जल्दी decision ले पाते हैं, whether you have to buy, you have to sell, then scalping is a good option for you. Now moving on to the next question, Faizal, which is by Ijaz Akhtar, and he says, how to be a successful trader in derivatives? So Faizal, if you could answer this, please. Right. So that is another interesting question. Successful trader. I'll tell you some of the traits which I think is helping me and definitely will help all the audiences, whoever is watching. So the key to making money in the markets, or the key to be a successful trader, is to stay disciplined. You have to really stay very disciplined. You have to set rules, you have to have systems in place, you have to have exact rules, right? मैं buy कब करूँगा जब ये criteria set होगा, आप sell कब करेंगे जब ये criteria set होगा. So all of these need to be written down on your laptop, on your screen, and you have to stick to those rules and carry on a trade. And also the other thing is, to be successful you have to be in the game, right? And if you have to stay in the markets for longer term, you have to keep your risk under control. And so that way आपको एक जो worst case scenario में, you should always know what your worst case scenario in this particular trade is. आपका maximum loss इस trade पे कितना है. So this is again another important point. And one more thing is, a lot of the times you see लोग लॉस से डीमोटिवेट हो जाते हैं और जब प्रॉफिट्स उनको एकदम एक्साइट कर देता है. बट ये चीज़ इज़ अगेन, ये चीज़ कब आती है जब आपको लगता है कि आपको एक स्टॉक मार्केट्स में पैसे कमाने के मतलब एक ऐसे, इट्स लाइक अ गैम्बलिंग फीलिंग, राइट, विच यू गेट when you are excited for your profits and when you're demotivated with your loss. So now to be successful you have to take control of this psychology part of your brain, right? You think of it as longer term, you think of it as losses and profit are like part of the game, right? So they'll keep happening. You cannot avoid losses and you cannot keep, आपके profits भी हमेशा नहीं रहेंगे. There'll always be good and bad patches which you have to go through to stay in this for the longer term. So these are some of the points which just came to my mind and will definitely help all of us. You have raised a really good point, Faisal, which is discipline. Stock market में profitable रहने के लिए discipline रहना तो काफ़ी important है, and obviously you have to train your psychology for it. Now moving on to the last question of this particular episode, which is by Mr. Atul Srivastav, and he asked, is trading profitable? Faisal, if you could please take this up. Right, is trading profitable? So trading to me is like a business, right? So it is not something that this is a subjective question. So basically मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, it's like asking our startups profitable, our business is profitable.
So उनका एक everything has a probability over here. There will be people who are profitable obviously, and there will be people who are not profitable. So there will be both people, but to be in the profitable side you have to follow the rules which I just earlier mentioned. That is like one of the key things. But also now to increase now to be profitable, you have to, आपको जो odds है आपके favor में लाना है, right, to be successful. So what the earlier points, as I mentioned, you have to follow those in order to increase the odds. And the other point is, trading to me is like a business, right? It's just like I'm running a business. So there will be good days, there will be bad days, but you have to make sure that जो good days है वो ज़्यादा time last करते हैं, and the bad days है उनसे आप सीखते हो, and you just come out as a better trader from there. So that way, definitely it depends on you on how you perceive trading. For me it's like a business, so definitely if I am doing all these things right, I am going to be profitable. If you want to stay profitable in the stock market, you have to treat it like a business. Very well said, Fazal. And if you guys have any other questions, you can comment down below and we'll try to answer it in the next episode of Analyst Call. And Fazal, thank you very much for joining in. I'm sure people have learned a thing or two about the stock market from you. I definitely have learned a lot. And to our audience, thank you very much for joining in. Fazal's social will be linked down below if you want to follow him. With that being said, we have come to an end of this episode and see you in the next episode of Analyst Call. Thank you.